The Pulley by George Herbert is a metaphysical poem that explores the tension between earthly desires and spiritual fulfillment. The speaker in the poem imagines God creating man and endowing him with various gifts, but deliberately withholding the gift of rest. The pulley, a simple machine used to lift heavy objects, becomes a metaphor for God's love and wisdom in keeping man from complete satisfaction on earth. Herbert uses the image of the pulley to suggest that God's intention is to draw man closer to him. The poem ultimately conveys the idea that earthly pleasures are fleeting, but spiritual fulfillment is eternal. Through this explanation, students can gain a deeper understanding of the religious and philosophical themes in the poem, as well as the use of symbolism and imagery to convey complex ideas. In addition, students will also be able to analyze the poem's structure and language and appreciate the poet's skillful use of metaphors and other literary devices to convey his message. This knowledge explanation will help Class X Maharashtra State Board students gain a better understanding of the pulley and improve their critical thinking and analytical skills. Okay, people, we will start with this chapter, which is basically a poem on pulley. Okay? What exactly do we mean by a pulley, people? पुली मतलब क्या होता है? पुली मतलब देखो, आपने ऐसा देखा रहेगा ना, दिस इज बेसिकली अ पुली. इससे हम बकेट ऑफ वाटर को भाई साहब ऊपर निकालते हैं कुएं में से, है ना. सो दिस बेसिकली डज व्हाट, इट मेक्स आवर वर्क इजी. अगर उसी बकेट ऑफ वाटर को हमें मेहनत से ऊपर निकालना पड़ता तो बहुत तकलीफ होती है ना, पूरे ऐसे खींचकर. सो पुली मेक्स द वर्क इजी. जस्ट वन मोमेंट पीपल. So pulley is something that makes our work easy. So George Herbert, 1593 to 1633, was a Welsh poet. वेल्स एक जगह है बेसिकली, ठीक है. वेल्स एक जगह है और उसी के ऊपर भाई साहब ये वेल्श पोएट, ठीक है. ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन. तो भाई साहब एक फादर थे, मतलब जो क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं तो उनको फादर बोलते हैं. सो ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन. He wrote religious poems with a lot of imagery and conceits. तो वो ज़्यादा करके क्योंकि वो priest थे तो इसलिए उनके poems में religion का झलक मिलता है. तो he was basically a religious poem, ठीक है. The poem exhibits a strange but two-way relationship between God and his worshippers. तो इस poem में God और उनके worshippers पे एक two-way relationship को प्रकाशित किया गया है, ठीक है. अनन्या, इस स्विच को बंद कर दो ना प्लीज. थैंक यू. Okay, though he has bestowed upon his worshipper with all his blessings, somewhere he holds them up with a pulley drawn to be grateful to him in all their endeavors. ठीक है. So he holds them with a pulley drawn. तो ऐसा है कि मतलब भगवान सबको एक पुली से पकड़े हुए हैं, ठीक है. तो though he has bestowed upon his worshipper, तो अपने वर्शिपर्स पे या अपने जानने वालों को या मानने वाले के ऊपर उन्होंने मेहरबानी तो की है, प्लस ऐसा है कि मतलब सबको एक पुलिस से ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक है. किसी को डूबने नहीं दे रहे, ठीक है. God gives so many precious gifts to the devotee, but at the same time, God also expects something in return. What does he expect? Why does he withhold? तो उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है. The pulley shows that God lifts man towards himself with his pulley of restlessness, ठीक है. तो God is something like God is pulling that person towards himself, ठीक है. What is distinctly metaphysical about the poem? Metaphysical मतलब क्या होता है? Something which is हमारे रोजमर्रा के जीवन से अलग, ठीक है. मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल मतलब गॉड या डिवाइन चीजों से, ठीक है. मेटाफिजिकल मतलब समथिंग दैट इज डिवाइन, समथिंग दैट इज डिवाइन. और नॉट मंडेन हम बोल सकते हैं, ठीक है. नॉट मंडेन, ठीक है. ओके. Is that religious notion is conveyed through a secular scientific image. तो religious notion को मतलब ये एक religious belief है. ये poem basically God और humans के connection के बारे में है, ठीक है. So this religion or spirituality, whatever you want to call it. But again इसमें एक example लिया गया है पुली का, which is basically science. Science का evolution से पुली हुआ है, ठीक है. So ये इस poem का context है. George Herbert's poem The Pulley is about a section of
नहीं, ऑप्शन लिखा है। Of the Christian story of creation in which God chose to bless humanity। तो भाई साहब क्रिश्चियन स्टोरी है क्रिएशन का जिसमें गॉड ने ये चूज किया कि पूरे ह्यूमैनिटी को ये ब्लेस करेंगे, ठीक है। द पोएम एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज फाइनेस्ट क्रिएशन, ठीक है, दैट इज मैन। गॉड और उसका फाइनेस्ट क्रिएशन दैट इज मैन। द पोएट यूजेस द पुली टू इलस्ट्रेट ह्यूमैनिटीज रेस्टलेस नेचर एंड द रीजन फॉर इट्स इनएबिलिटी टू बी सेटिस्फाइड। तो पुली को भाई साहब एक रेस्टलेस नेचर से कंपेयर किया गया है, ठीक है, इट इज रेस्टलेस, ठीक है। द पोएट यूजेस द पुली टू इलस्ट्रेट ह्यूमैनिटीज रेस्टलेस नेचर एंड द रीजन फॉर इट्स इनएबिलिटी टू बी सेटिस्फाइड। गॉड द अल्टीमेट पेरेंट फिगर टू मैनकाइंड यूजेस अ स्पेशल पुली टू एंटाइस मैन टू रिटर्न टू हिम। तो गॉड ने भाई साहब क्या किया है, एक पुली से इट इज बेसिकली एंटाइसिंग मैन टू रिटर्न टू हिम, ठीक है। कंसिडर हाउ अ पुली जनरेट्स फोर्स एंड लेवरेज टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। God kept rest to himself, ठीक है, so that he could always draw people back, ठीक है। तो God ने भाई साहब रेस्ट अपने तरफ रखा so that he can always draw people back to himself. However, because of this liberty, humanity is always hopping from place to place in search of fulfillment. तो मतलब God की तरफ नहीं जा रहा है ह्यूमैनिटी, इधर उधर जा रहा है, ठीक है। There are significant aspects of human life that were easily transferred from God to humanity. Rest is, ठीक है, one blessing that God did not allow, ठीक है। तो एक रेस्ट बोल के जो फिनोमिना है, हमारे अंदर काफी सारा रेस्टलेसनेस है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आर रेस्टलेस। अगर एक चीज इनका फुलफिल हो जाता है तो दूसरे चीज के लिए भाई साहब देयर इज अ लॉन्गिंग, अच्छा इसको भी फुलफिल करना है, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ रेस्टलेसनेस। गॉड केप्ट रेस्ट टू हिमसेल्फ, बाकी हमको रेस्टलेसनेस दे दिया गया, लेकिन इसी रेस्टलेसनेस में हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये एक मतलब वर्ल्ड में ही एक चीज से दूसरे चीज पे टपक रहे हैं, ठीक है, रेस्टलेसनेस से, ठीक है। ओके, रेस्ट इज वन ऑफ द ब्लेसिंग दैट गॉड डिड नॉट अलाउ टू एल्यूड एस्केप। इन ऑर्डर टू कीप हिज क्रिएशन नियर टू हिम, ही ऑप्टेड टू डिनाई ह्यूमैनिटी द कैपेसिटी टू स्लम्बर या रेस्ट, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी को रेस्ट नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर रेस्टलेस ही बनाया इन्होंने। रेस्टलेस मतलब हर समय बेचैनी है, ठीक है। और इस बेचैनी का आंसर गॉड है। अगर हम गॉड से कनेक्टेड हो जाए तो इस बेचैनी से हमारा निवारण हो जाएगा, लेकिन हम ज्यादा करके इससे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वी आर कॉन्स्टेंटली हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अदर। एक चीज हमारे जीवन में फुलफिल होती है तो दूसरी चीज की आकांक्षा अपने आप बनने लगती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, गॉड डिड नॉट वांट ह्यूमंस टू अडोर नेचर मोर देन द गॉड ऑफ नेचर। इन दिस पोएम हर्बर्ट हैज एंगेज्ड in the study of human nature and religion। तो human nature और religion में ये engage हुए हैं, ठीक है। Okay, structure: The Pulley by George Herbert is a 4-stanza poem divided into quintains, that is groups of 5 lines, ठीक है। तो quintains मतलब क्या होता है भाई साहब, ठीक है, 4 स्टैंजा का पोएम है, 5 का ग्रुप बना हुआ है। The rhyming scheme used in the first 3 stanzas of the poem is ABA BA। ये तो भाई साहब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं लास्ट वर्ड को देखकर। While that of the 4th stanza is ABCBA, the rhyming scheme's consistency along with the meter gives the poem a fairly ordered sense, ठीक है। तो पोएटिक उसमें भाई साहब एक fairly ordered sense क्रिएट किया है पोएम में, ठीक है। When God had first made man, ठीक है, having a glass of blessings standing by, let us, said he, pour on him all we can। तो जितना हम दे सकते हैं अच्छी से अच्छी चीजें सब मैन में देते हैं, सारे क्वालिटीज, ठीक है। तो व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड, जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, तो मतलब स्टैंडिंग बाय मतलब क्या है भाई साहब, उसके पास ऐसे ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स था, इसको रखा और सारा का सारा उड़ेल दिया इंसान पे। लेट अस, सेड ही, पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, ठीक है। तो जो भी हम दे सकते हैं उसको, लेट अस पोर एवरीथिंग। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस व्हिच डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन। पूरे दुनिया भर के जो रिचेस हैं, ठीक है, विच डिस्पर्स लाई, जो इधर उधर बिखरी हुई हैं, सबको समेट के इन्होंने ह्यूमन बींग्स पे डाल दी, ठीक है। सो लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स मतलब स्कैटर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, कलेक्ट टुगेदर, सबको कलेक्ट करो और एक स्मॉल स्पेस में डाल दो, ठीक है। सो स्ट्रेंथन फर्स्ट मेड अ वे, देन ब्यूटी फ्लाउड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर, ठीक है। When almost all was out, God made us stay, perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lay, ठीक है। सो ये सारे हम मीनिंग्स देखेंगे।
for I should, said he, bestow this jewel on also on my creature. He would adore my gifts instead of me, and rest in nature, not of God, not the God nature. So both should losers be. Yet let him keep the rest, but keep him with रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पोएम का मेन उद्देश्य है कि ये बताना कि गॉड ने हमको रेस्टलेसनेस दे दिया है, बेचैनी दे दी है, और शायद इसी एक क्वालिटी से हम गॉड तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, लेट हिम बी रिच एंड वेरी, देन एट लास्ट इफ गुडनेस लेट हिम नॉट, येट वियरनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट. और धीरे धीरे वो मेरे पास आएगा. सो वी विल गो लाइन बाय लाइन. तो ये सब तो आपके पास सब ब्लेसिंग्स वगैरह है. ओके, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, having a glass of blessing standing by, let us, said he, pour on him all we can. Let the world's riches which dispersed lie contract him to a span. ठीक है, so in the opening verse of the pulley, George Herbert discusses the origin of humanity, first made man. ठीक है, Herbert attempts to retell the Christian story of creation with a few additions. तो Christian story जो है creation में उन्होंने कुछ और additions से इसको प्रस्तुत किया है इस poem में. He expresses the feelings of God when he chose to create humanity. ठीक है, तो God कैसा फील कर रहा था before he created the first man. ठीक है, how was he feeling or what did he intend to do? ठीक है, when he created the first man. When God saw what he had created, he decided to gift humanity with a glass of blessings. ठीक है, तो with a glass of blessings मतलब पूरा उड़ेल दो, blessings humanity पे उड़ेल दो, ऐसा God ने किया. ठीक है, okay. Let all the world's riches which dispersed lie, तो जितने भी वर्ल्ड के रिचेस हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक है, let all contract into a span, सबको भाई साहब एक जगह इकट्ठा करके ह्यूमैनिटी के ऊपर डाल दो. सीधा बैठिए और सीधे एग्जाम दीजिए भाई साहब, बहुत बढ़िया. So strengthen first made a way, then beauty flowed, then wisdom, honor, pleasure. ये सारे जितने भी क्वालिटीज हैं, ठीक है, तो पहले तो भाई साहब so strengthen first, strength was the first blessing. Human beings strength वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, they have got a lot of मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेंथ. ठीक है, तो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे. तो गॉड ने बोला ना कि सारे जितने भी अच्छे क्वालिटीज हैं जो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं सबको समेट के ह्यूमैनिटी पे उड़ेल दो, ह्यूमन बींग्स क्रिएट करो. तो क्रिएशन के टाइम पे ये सारा भाई साहब आया. ठीक है, ओके. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, तो आपका जो स्ट्रेंथ है पहला जो चीज आया वो था क्या? स्ट्रेंथ. ठीक है, ह्यूमन बींग्स टुडे आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल स्पीशीज. ठीक है, ओके. देन ब्यूटी फ्लो. ठीक है, ब्यूटी, ह्यूमन बींग्स एक ब्यूटीफुल क्रीचर है. ठीक है, मॉन्स्टर्स सा क्रीचर नहीं है. अगर किसी स्पाइडर को देखोगे तो डर जाओगे भाई साहब, है ना. डायनासोर को देखोगे तो डर जाओगे, बड़े बड़े भयानक लगते हैं ये. ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स आर अ ब्यूटीफुल क्रीचर. ठीक है, ब्यूटी फ्लो, देन विजडम, फिर हमारा भाई साहब इंटेलेक्ट. ठीक है, विजडम. ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत. ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर द वंस हु विल ऑलवेज डिमांड ऑनर. ठीक है, एंड देन प्लेजर. ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब समेट कर ह्यूमन बींग्स में उड़ेल दी गई. When almost all was out, God made a stay. जब सब कुछ खत्म हो गया डालने के लिए तब गॉड ने भाई साहब एक स्टे बनाया. ठीक है, then there was beauty followed by wisdom, honor and finally pleasure. ठीक है, strength was the first blessing that flowed to humanity in the pulley. It made way. ठीक है, then there was beauty followed by wisdom, honor and finally pleasure. All these are critical elements of the human existence. हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस में ये सारे जितने भी हैं वो क्रिटिकल हैं. ठीक है, कोई भी इंसान भाई साहब प्लेजर मतलब उसके लाइफ में भाई साहब प्लेजर चाहेगा भाई साहब. ठीक है, कोई भी इंसान भाई साहब ऑनर भी चाहेगा, इज्जत से जीना चाहेगा. कोई भी इंसान भाई साहब अपने दिमाग को यूज करेगा रैशनली, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे वो विजडम गेन करता जाता है. ठीक है, और एनीवन विल फॉलो ब्यूटी एज वेल. ठीक है, आफ्टर शावरिंग मैन विद ब्लेसिंग्स सो अबंडेंटली गॉड डिसाइडेड टू रिटेन रेस्ट. ठीक है, तो सारी चीजों को डाल दिया लेकिन रेस्ट को अपने पास रखा. रेस्ट इन द बॉटम ले. तो जैसे समझ लो ये फनल है. ठीक है, इस फनल में से भाई साहब ब्यूटी जा रहा है, ऑनर जा रहा है. ठीक है, और लेट्स से विजडम जा रहा है, प्लेजर जा रहा है. ये सारी चीजें भाई साहब ह्यूमैनिटी पे जा रही है, गॉड दे रहे हैं सब कुछ. ठीक है, सिर्फ रेस्ट को रोक दिया. जब सब चला गया तो रेस्ट था, एक रेस्ट, इसको रोक दिया भाई साहब. मतलब बेचैनी हमारे अंदर डाल दी. ठीक है, हमारे अंदर रेस्ट करने का फिनोमेना नहीं है. अच्छा हमारे पड़ोसी के पास ये है, हमारे पास तो ये नहीं है भाई साहब. ओके, सो एक बेचैनी चालू हो गई भाई साहब. ठीक है, सो अरे पड़ोसी का बच्चा पढ़ के इतना आगे निकल गया और हमारा देखो भाई साहब, अरे चलो इसकी लाइफ हम तबाह कर देते हैं अभी, है ना. यही होता है ना घर में. देखो शर्मा जी का बेटा पढ़ रहा है, ठीक है, ये नहीं पढ़ रहा है ना. तो ये सारी चीजें हो जाती हैं. ठीक है, वी आर नॉट फुलफिल्ड विथ व्हाट वी हैव.
एंड दिस क्रिएट्स रेस्टलेसनेस, ठीक है। ये हमारे अंदर भाई साहब रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। अगर आप आजू बाजू एनिमल्स को देखोगे तो मतलब उनका क्या है, खाना अगर उनको मिल गया, रहने की जगह मिल गई, दे विल बी कंटेंटेड, ठीक है। अगर किसी शेर का पेट भरा है और उसके सामने से भाई साहब एक हिरन का झुंड जा रहा है, इट विल नॉट अटैक क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, ठीक है। द मोमेंट ही इज हंग्री देन ही विल अटैक, ठीक है, वो ढूंढ ढूंढ के अटैक करेगा। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ऐसे नहीं है, अगर कोई आपका पेट भरा भी रहेगा और खाना दे रहा होगा, हाँ ठीक है पैकिंग कर दे भाई साहब, ठीक है, तो घर में फ्रिज में रखेंगे फिर गर्म करके खाएंगे, है ना। सो वी विल नॉट लीव दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये ऐसा चीज है। तो रेस्ट जो है वो हमको नहीं दिया, बाकी सारी चीजें हमको दे दी गॉड ने, लेकिन रेस्ट अपने पास रखा, ठीक है। सो वी वेर मेड अ रेस्टलेस स्पीशी, वी वेर गिवन ऑल द अबंडेंट क्वालिटीज of nature that God can offer at its best, but God denied us rest, ठीक है। रेस्टलेसनेस हमने हमारे अंदर आ गया। In this poem, rest is a treasure that stays at the bottom of God's cup. The word rest is a pun here, ठीक है। पन मतलब पन होता है, मतलब एक ही चीज दो मीनिंग्स होती हैं, since it may refer to both physical rest and the feeling of being abandoned, ठीक है। तो दोनों भी, ठीक है। जैसे कोई सो रहा है तो उसको क्या दुनिया से पड़ी है ना, दुनिया में क्या हो रहा है उसको कुछ मालूम है क्या, नहीं, तो वो अबैंडन्ड ही है ना, वो दुनिया से अलग ही है, ठीक है। एक ये और रेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आराम से सोना, ठीक है। फिजिकल और मेंटली आप एकदम स्विच ऑफ होके सो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा पन, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है, दैट इज बेसिकली व्हाट पन। तो पन मतलब क्या होता है, पन फन का ही एक वो होता है। पन मतलब एक ही शब्द को दो तरीकों से या दो मीनिंग्स के साथ व्यवहार किया गया, ठीक है। Since it may refer to both physical rest and the feeling of being abandoned, delivers God's word at the time. He decides to pour on him, that is humankind, all we can. These blessings were just standing by in a cup, waiting to be used. As he addresses all of creation, the speaker, everything from strength to beauty is showered onto the world's riches. They are formed a span out of them. तो span से भाई साहब ये हुआ है, सारा वर्ल्ड का जो रिचेस है वो सब दे दिया गॉड ने, सिर्फ रेस्ट को रोक दिया, ठीक है। रेस्ट इन द बॉटम ले, इसको नहीं दिया। फॉर इफ आई शुड, सेड ही, बेस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर, सो बोथ लूजर्स बी। तो गॉड ने बोला कि अगर मैं ये रेस्ट भी दे दूं तो मेरा जो क्रीचर, जो ह्यूमन बीइंग मैंने क्रिएट किया है, वो जो भी चीजें मैंने दी हैं उसी से खुश रहेगा, क्योंकि वो रेस्ट पे है, ठीक है। ही कैन पीसफुली एंड कामफुली रेस्ट एज वेल। वो कभी भी इसकी बेचैनी जो है वो मुझे इसको मुझ तक लाएगी, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट 5 लाइन्स द पोएम स्टेट्स दैट द गॉड चोज नॉट टू ग्रांट ह्यूमंस रेस्ट, तो रेस्ट ना दिया जाए, ठीक है, बेचैनी दी जाए। ही वॉज वेल अवेयर दैट इफ ही डिड, ही दैट इज ह्यूमन काइंड वुड अडोर माई गिफ्ट्स, ठीक है, अडोर माई गिफ्ट्स रादर देन मी। तो ये मेरे गिफ्ट्स को अडोर करेगा, ना कि मुझको, ठीक है। God, according to Herbert, made his decision because he didn't want humans to spend their days adoring and worshipping nature, ठीक है। सिर्फ वर्शिपिंग नेचर करना या अडोर करना, इसी में टाइम ना वेस्ट करें, इस बेचैनी को यूज करते हुए मुझ तक पहुंचे, ठीक है। They should be adoring the God of nature, ठीक है। Instead, in simpler words, if man worships the gifts rather than God, so both should losers be, ठीक है। Then both man and God have failed in their intention. तो गॉड का ये बोलना है कि अगर मैंने इंसान को सुख चैन, मतलब चैन जिसको है, ठीक है, बेचैनी इसके जवाब हमने उसको चैन दे दिया, तो क्या हो जाएगा, उसमें बेचैनी रहेगी, और बेचैनी नहीं रहेगी तो मेरे तक पहुंचने का अटेम्प्ट नहीं करेगा, वो जो चीजें उसको मिली हुई हैं उसी से खुश रहेगा, ठीक है। द क्रीचर दैट इज मैन वुड नॉट मेक एन अटेम्प्ट टू रीच मी, ठीक है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि जैसे जैसे उसके एक एक इच्छाएं की पूर्ति हो रही हैं, सारी आकांक्षाएं भाई साहब जैसे जैसे उसकी पूर्ण हो रही हैं, लेकिन फिर भी ही इज फीलिंग लेफ्ट आउट, है ना। अरे अब ये करना है, अच्छा ये कर लिया, अब ये करना है, तो ये तो कोई अंत नहीं हो रहा। तो कभी ना कभी तो उसको रियलाइज होगा, यार कब तक दौड़ेंगे, ठीक है, और कहाँ तक ही दौड़ेंगे। इसका मतलब इससे भी बड़ी कोई इच्छा हो सकती है, और वो इच्छा है गॉड को पा लेना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज सेइंग कि अगर मैंने इसको जितनी भी चीजें दी हुई हैं, जितनी भी प्रीमियम क्वालिटी की चीजें उसको दी हुई है, साथ में अगर मैंने चैन भी दे दिया था, तो इससे क्या होता था भाई साहब, दैट वुड, मैं भी फेलियर होता था और इसका लाइफ भी फेल होता था। He would have been a failure and my life also would have been a failure, ठीक है। That is what God is saying. So both should losers be. तो हम दोनों ही फेल कर गए होते, मतलब God as well as
humans, ठीक है, both would have failed. God have failed in their intention. Yet let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. Let him be rich and weary, then at least if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. ठीक है, तो God commands that man keep the gifts. तो भाई साहब सारे गिफ्ट तुम रख लो, ठीक है, कोई दरकार नहीं है मुझे, बट ही इज डिससैटिस्फाइड इन एवरी पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ हिज हेस्टी डिसीजंस. तो ये कोई भी इंसान, सब कुछ मिलने के बावजूद भी कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है ना, सब अरे यार ये रह गया, ठीक है, कोई भी इंसान अपने आप में फुलफिल्ड नहीं रहेगा, ठीक है. गॉड डिटरमिन्ड दैट मैन माइट रिमेन रिच बट वियरी. वियरी मतलब थका हुआ, ठीक है, दौड़ते दौड़ते थक ही जाएगा वो, ठीक है. Because God's compassion could not persuade man to adore him, let these trials and tribulations lead humanity back to God. तो ये ट्रायल्स हैं, जो भी गॉड से मिला हुआ है उन चीज़ों को यूज करते हुए उसके अंदर बेचैनी बढ़ी है, ठीक है, वो गॉड तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो गॉड भी बोल रहा है ठीक है, लेट्स वेट, ठीक है. एज अ रिजल्ट वी आर बैक टू टॉकिंग अबाउट द पुली दैट वाज मेंशन्ड अर्लियर इन दिस पोएम. वही पुली की बात की जा रही है जिससे गॉड इसको पुल करता है ऊपर, ठीक है. वंस अ ह्यूमन बीइंग realizes that all the gifts that have been adored to him by nature or by God, ठीक है, are actually not serving the purpose, ठीक है. His purpose in life is to meet up with God, ठीक है. एक बार वो realization हो जाता है तो ये बाकी सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं, ठीक है. So conclusion, man has been denied the blessing of rest, ठीक है. रेस्ट मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि अरे हम सो नहीं सकते क्या, नहीं सो सकते हैं, ऐसा नहीं. रेस्ट मतलब बेचैनी दी गई है हमें, ठीक है, बेचैनी हमें मिला है. बाय गॉड ऑन पर्पस. गॉड इज वेल अवेयर दैट ही हिज अदर गुड्स वुड इवेंचुअली कॉज स्पिरिचुअल अनरेस्ट एंड एग्जॉशन इन मैन, ठीक है. सो उनके जो अदर गुड्स हैं, ये देखो ये अभी आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है, इवेंचुअली कॉज स्पिरिचुअल अनरेस्ट एंड एग्जॉशन इन मैन, ठीक है. तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, स्पिरिचुअल, भाई साहब टाइम का है इधर बढ़िया, क्या ये बढ़िया. अच्छा बैठ जा उधर बैठ. ठीक है. आफ्टर ऑल, सो गॉड इज वेल अवेयर दैट इज अदर गुड्स would eventually cause spiritual unrest, ठीक है, and exhaustion in man. तो मतलब इतना ज्यादा भरपूर मात्रा में दिया हुआ है गॉड ने मैन को, सो वो हमेशा स्पिरिचुअल अनरेस्ट मोड में ही रहेगा, और यही स्पिरिचुअल अनरेस्ट मोड से ही वो गॉड की तरफ प्रेरित होगा, ठीक है. he will basically be inclined towards God. after all, man will become bored of the material gifts he has received. तो एक टाइम आएगा जब वो बोर होगा ही होगा. Humans will soon turn to God in desperation and weariness. Desperation and weariness मतलब एक ना एक दिन भाई साहब इस फालतू के दौर से वो थक ही जाएगा और तब वो गॉड की तरफ रिटर्न होएगा. God is unquestionably omniscient, all knowing and prophetic, ठीक है. Omniscient मतलब सब कुछ जानता ही है, and prophetic उसको मालूम है आगे क्या होने वाला है, ठीक है. Because God created them, Hubbard prays that people might be given the powers to choose the right path and obey God. तो हबर्ड ने भाई साहब यहाँ पे ह्यूमैनिटी और गॉड के कनेक्शन के बारे में बातें की हैं, ठीक है. अप्रिसिएशन. द टाइटल ऑफ द पोएम इज द पुली. ऑब्वियसली ये भाई साहब पुली पोएम का नाम है. द पोएम इज रिटन बाय वेल्श पोएट जॉर्ज हेबर्ड हु वाज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन, ठीक है. तो ये एक प्रीस्ट थे, तो वो प्रीस्ट थे और प्रीस्ट होने के चलते उनका ये जो है इस पोएम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है. प्रीस्ट होने का जो एटीट्यूड है वो इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है. ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम हैज 5 लाइन्स. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी ए. द चीफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम इज मेटाफर. ये मेटाफर है भाई साहब. द ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स सिग्निफाइज द सम ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज बेस्टोड ऑन मैन, ठीक है. सो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स मतलब जितने भी आपको भगवान ने ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स दिया हुआ है, सिग्निफाइज द सम ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज bestowed on man. The quality of rest or contentment is implicitly compared to a jewel. The other figures of speech, यहाँ पे क्या क्या हुआ है भाई साहब, pun, inversion, paradox, etc. ये सारे आपके figures of speech इस पूरे में use हुए हैं, ठीक है. The central idea of the poem
इज द रीजन फॉर मैन्स कंटिन्यूअल रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो इंसान का जो कंटिन्यूअस रेस्टलेसनेस है वो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, ऑल इज लाइफ। अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस इज बिकॉज गॉड विथहेल्ड द क्वालिटी ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन। ठीक है, सो रेस्ट नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया लेकिन बेचैनी साथ में दे दी, और इसी बेचैनी के चलते शायद, ठीक है, कभी दिमाग खुल जाए और गॉड को परसू करे। ठीक है, सो दैट मैन्स थॉट्स वुड अल्टीमेटली टर्न टुवर्ड्स गॉड हिज क्रिएटर। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच, अभी हम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, अप्रिसिएशन हो गया भाई साहब। ठीक है, ओके, विल टॉक अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच। हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय, तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गया, मेटाफर। ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स, क्या ब्लेसिंग्स को आप ग्लास में स्टोर कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, बट देयर इज अ मेटाफर, एज इफ जैसे ग्लास जैसे पानी से भरा हो या दारू से भरा हो, ठीक है, जो भी होता है तो भरा हुआ है, तो वैसे ही गॉड का भी जो ग्लास है वो ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है जो उन्होंने ह्यूमन बींग्स पे उड़ेल दी हैं। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन, द ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स सिग्निफाइज द सम ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज बेस्टोड ऑन मैन। ठीक है, तो ये मेटाफर है। ठीक है, रेस्ट इन द बॉटम ले, फिगर ऑफ स्पीच भाई साहब क्या है, पन, क्योंकि इस रेस्ट को फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट भी बोला गया है और बेचैनी का मतलब चैन बोला गया है। ठीक है, ओके, द वर्ड हैज टू मीनिंग्स, इट मीन्स remaining and it also means resting, the gift of rest। ठीक है, it means resting and it also means the gift of rest, मतलब चैन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो तो ही आप चैन में होंगे, आप बैठे बैठे भी चैन में हो सकते हैं। बेचैनी जो हमको मिली हुई है वो उसके बारे में है, तो दिस इज बेसिकली पन। एक ही वर्ड का दो मीनिंग निकलता है यहाँ पे। ठीक है, लेट हिम बी रिच एंड वियरी, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे भाई साहब क्या है, पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स क्यों है, रिच एंड वियरी, पैराडॉक्स मतलब कंफ्यूजन। ठीक है, रिच जो है जनरली हम सोचते हैं कि जो रिच होगा वो रिलैक्स्ड होगा। ठीक है, तो ऑपोजिट आइडियाज ऑफ बीइंग रिच एंड वियरी एट द सेम टाइम आर मेंशन्ड इन द पोएम। ठीक है, तो रिच एंड वियरी मतलब पैसे वाला भी हो और थका हुआ भी हो। ठीक है, सो ऑपोजिट आइडियाज ऑफ बीइंग रिच एंड वियरी एट द सेम टाइम आर मेंशन्ड इन द पोएम। दिस टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज पैराडॉक्स। ठीक है, रिच एंड वेरी, रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे आर यूज हुआ है, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को अपन क्या बोलेंगे, ऑलिट्रेशन। एक ही सेंटेंस में, ठीक है, क्लोजिंग वर्ड्स में मतलब क्लोज वर्ड्स में अगर पहला जो आपका लेटर है वो सेम होता है तो दैट इज कॉल्ड ऑलिट्रेशन। एक्सप्लेनेशन, द साउंड ऑफ आर इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट, पोएटिक इफेक्ट के लिए भाई साहब इसको यूज करें। सो बोथ शुड लूजर्स बी, फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्या है, मतलब एक सेंटेंस को तोड़ मोड़ के लिखा। सो अगर इस सेंटेंस को सही से लिखा जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, बोथ वुड बी लूजर्स, सो बोथ वुड बी लूजर्स। ठीक है, लेकिन इसको पोएटिक इफेक्ट के लिए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट तरीके से लिखा गया है। इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन। सो बोथ शुड लूजर्स बी, द वर्ड्स हैव बीन अरेंज्ड इन एन इनवर्स मैनर टू ऐड पोएटिक इफेक्ट। करेक्ट ऑर्डर क्या है, सो बोथ शुड बी लूजर्स। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट ग्रामर में इसको इस तरह से लिखा गया है ताकि इस पे एक पोएटिक इफेक्ट आए। ऑलिट्रेशन, साउंड इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। ठीक है, तो आपका सो एस, ठीक है, ये भाई साहब रिपीट हुआ है, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ ऑलिट्रेशन। ठीक है, ओके, मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। ठीक है, सो मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है भाई साहब, सिनेक्डोक। ठीक है, सिनेक्डोक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, द ब्रेस्ट इज ओनली रेफरिंग टू द चेस्ट बट इट इज टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट वन विल हैव दैट इज रिसीविंग फ्रॉम गॉड। ठीक है, वंस अगर गॉड से वो मिल जाता है तो जो कंफर्ट उसको मिलेगा दैट इज व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू, सिनेक्डोक। Synecdoche is a figure of speech in the word or phrase that refers to a part of something that is substituted to stand in front of the whole or vice versa। तो गॉड उसको आलिंगन कर ले, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो गॉड में वो समा जाए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज मीनिंग, मतलब दैट ह्यूमन बीइंग विल कंप्लीटली बी अब्सॉर्ब्ड इन गॉड, इसको अपन बोल रहे हैं। ठीक है, सिनेक्डोट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज दैट रेफर्स टू अ पार्ट और समथिंग इज सब्सटीट्यूटेड टू स्टैंड इन फॉर द होल और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसको अपन गॉड का बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है गॉड से आलिंगन हो जाए, मतलब क्या हो रहा है, गॉड में वो समा जाए। ठीक है, दैट इज व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। ये तो खत्म हुई खबर है।